So guys, this is the second part of paper 2023 PYQ prelims coverage series. So let's start with question number 5. See, always remember UPSC wants to select you. It will give some or the other hints in most of the questions. So un hints ko we have to catch. So this paper I am solving to catch those hints. I hope you are understanding it is being helpful to you. Question number 51. Consider the following statements in relation to Janni Suraksha Yojana. First, it is safe mother intervention of the state health department. As I said, authorities are red flags. Can we give wrong? क्योंकि सेंट्रल का भी हो सकता है जननी सुरक्षा योजना इज सेंट्रल स्कीम तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्प करती वो इट सपोर्ट्स द प्रोग्राम बट मेनली सेंट्रल लेवल पर है दिस इज रॉन्ग Second, its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. Janni Suraksha Yojana, this is correct. Third, it aims to promote institutional delivery among poor pregnant women. This is correct. सुरक्षा बहुत maternal mortality होती है उसको कम करने के लिए general statement. Fourth, its objective includes providing public health facility to sick infants up to 1 year of age. This is a red flag. इसके लिए कौन सी स्कीम है? जननी शिशु सुरक्षा योजना. ओके, दिस इज अबाउट ओनली जननी. इन्फेंट्स के लिए इट इज जननी शिशु सुरक्षा योजना. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. आंसर वुड बी बी, टू ओनली. आई होप ये समझ आया होगा. रेड फ्लैग्स, हाउ टू कैच रेड फ्लैग्स. 52. Consider the following statement in the context of interventions being undertaken under anemia मुक्त भारत स्ट्रेटेजी. ठीक है, अनीमिया किससे होता है? मेनली डेफिशिएंसी ऑफ इट्स बेसिक डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. तो गवर्नमेंट के प्रोग्राम में आयरन सप्लीमेंट्स देना कि जिससे अनीमिया ना हो. इंडिया में कितने परसेंट, राइट इन द कमेंट सेक्शन, कितने परसेंट लोगों को, चिल्ड्रन को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अनीमिया का इशू है? फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescent and pregnant women. प्लीज केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ना है. इसमें दे रखा है कैल्शियम सप्लीमेंट. दिस इज रॉन्ग. नॉट कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट्स, आयरन एंड फोलिक एसिड. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. सेकेंड, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड cord clamping at the time of childbirth. This is general correct, positive statement. Third, it provides for periodic deworming to children and adolescents जिससे malnourishment ना हो. This is positive, correct. Then fourth, it addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobin related and fluorosis. This is positive, this is correct. Answer would be only 3. Next, question number 53. Option 1. Carbon fibers are used in the manufacture of components used in automobile and aircraft. This is general statement, therefore this would be correct. Then second, carbon fibers, yani these are positive वाली चीजें. Carbon fibers once used cannot be recycled. This is negative, red flag. Therefore this is wrong. Option would be 1 only. I hope ये समझ आ गया होगा. Next, question number 54. In how many of the above condition is function of accelerometer required? Correct statement बताने. Consider the following actions. First, detection of car crash collision which result in the deployment of airbag almost instantaneously. Don't get confused कि इसमें instantaneously दिया तो red flag हो सकता है. Almost instantaneously दिया है तो this is red flag से बच जाता है. अगर सिर्फ instantaneously दिया होता तो this would have been red flag. Almost instantaneously दिया तो this is not a red flag. Second, detection of accidental free fall of a laptop towards the ground which results in the immediate turning of a hard drive. General, इसमें कोई red flag नहीं है. Third, detection of the tilt of the smartphone which result in the rotation of display between portrait and landscape mode. No red flags. Therefore, we can mark all 3 correct. Next, question number 55. With reference to the role of biofilters, यानी ये पॉजिटिव वाली टेक्नोलॉजी है, in recirculating aquaculture system, consider the following statement. अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो we have to select पॉजिटिव वाले स्टेटमेंट्स. First, biofilter provide
waste treatment by removing uneaten fish feed, positive, correct. Second, biofilter convert an ammonia present in fish waste to nitrate, this is correct. ये हेल्प करता है, हेल्पफुल फॉर प्लांट्स, दिस इज करेक्ट, प्लांट को फिल्टर कर देता है. थर्ड, बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर. इंक्रीज फॉस्फोरस से क्या होगा, एल्गल ब्लूम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, दिस विल लीड टू डेथ ऑफ फिश. दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, हेंस दिस इज रॉन्ग. आई होप समझ गया होगा. फॉस्फोरस अगर वाटर में, फॉस्फोरस बायोफिल्टर कम करता है जिससे फिश सर्वाइव कर पाए. बायोफिल्टर अगर जैसे स्टेटमेंट दे रखा है फॉस्फोरस इंक्रीज कर देगा तो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाएगा वाटर का, जिससे एल्गल ब्लूम और डेथ ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, डेथ ऑफ फिशेस हो जाएगा. दिस इज ऑप्शन बी, ओनली टू. नेक्स्ट 56, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस और डिस्क्रिप्शन. पहले पढ़ते हैं पल्सार. Pulsars neutron star that are formed when massive star run out of fuel and collapse. This is correct, NCERT में. Then first, Cepheids जो होते हैं, those are stars which brighten and dim periodically on nebula, giant clouds of dust and gas in the space. जब अर्थ का स्पेस का फॉर्मेशन हुआ था हमारे सोलर सिस्टम का, तो giant nebula cloud थे. This is in NCERT. This is opposite. तो only one would be correct. आई होप ये दो तो आपने पढ़े होंगे. अगर आपने पल्सर पढ़ा है, नेबुला पढ़ा है, नेबुला से आप यू कैन आइडेंटिफाई फर्स्ट वाला इज रॉन्ग, so this can easily be attempted. Then question number 57, which one of the following countries has its own satellite navigation system? ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, कनाडा का नहीं है, इजराइल का नहीं है, अभी ओनली जापान का है. ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है. इससे रिलेटेड 2019 या 2018 में भी क्वेश्चन पूछा जो का है, इंडिया की नेविगेशन सैटेलाइट का नाम क्या है, नेम ऑफ इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट बताना है. ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है. देन क्वेश्चन नंबर 58, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ballistic missiles are jet propelled at subsonic speed throughout their flights, while cruise missiles are rocket part only in the initial phase of the flight. ये हमने पार्ट 9 में ऐसे क्वेश्चन पार्ट 9 में फ्लिप द स्टेटमेंट वाले चीट कोड में पढ़े. जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ओनली इनिशियल फेज में वर्क करता है, और जो क्रूज मिसाइल है वो थ्रू आउट वर्क करता है. तो ये ऑपोजिट कर दिया है. सेकेंड, अग्नि 5, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. अग्नि 5 इज द मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, while BrahMos is a solid fuel intercontinental ballistic missile. This is also again opposite. जो अग्नि 5 है that is intercontinental ballistic, and BrahMos is a cruise missile. BrahMos cruise missile है. This is again opposite. This is wrong. Answer is D. Neither one nor two. Then next question number 59. Consider the following statement regarding mercury pollution. First, gold mining activity is a source of mercury pollution in the world. This is correct. Gold mine करते वक्त mercury pollution होता है general. Second, coal-based thermal power plants cause mercury pollution. This is also correct general statement. Third, there is no safe level of exposure to mercury. This is wrong. WHO ने, this is red flag. WHO has set the limit. मतलब हर चीज की लिमिट है कि बेसिक लेवल इतना होगा, इससे ज्यादा लेवल अगर ज्यादा हुआ हर चीज में कि इतना लेवल होना चाहिए, इससे ज्यादा लेवल पे दिस इज डेंजरस. तो आंसर इज ओनली 2. नेक्स्ट, with reference to green hydrogen, consider the following statement. First, it can be used directly as a fuel for internal combustion. यानी इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट बताने कि पॉजिटिव कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो सकते हैं. तो डायरेक्टली से कंफ्यूज मत होना कि दिस कैन बी रॉन्ग. दिस इज पॉजिटिव. कैन बी यूज फॉर इंटरनल कम्बशन, दिस इज पॉजिटिव. दिस कैन डायरेक्टली बी यूज. अगर इसमें आ जाता कैन नॉट डायरेक्टली बी यूज तो उसमें चांसेस होते रेड फ्लैग होने के, पर हाइड्रोजन is a green hydrogen is positive technology, so this is positive. It can be blended with natural gas and used as fuel for heat or power generation, this is correct, positive. Third, it can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicle, it can be use अब कर ही रहे हैं धीरे धीरे हाइड्रोजन, green hydrogen, this is C, all three are correct. Next, question number 61. Consider the following countries. How many of the above countries share land border with Ukraine? ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें रेड फ्लैग वर्क नहीं करेंगे, अगर नहीं आता तो स्किप इट. आंसर इज हंगरी एंड रोमानिया, ओनली 2.
Then next, question number 62. With reference to Earth atmosphere, which one of the following स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा अर्थ एटमॉस्फेयर को लेके। इसका आंसर डायरेक्टली मतलब 10 टाइम्स दे रखा है, 2/3 वेव दे रखा है। ये वाले रेड फ्लैग्स है, रॉन्ग। सी, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली, इसमें स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया, लार्जली मोस्टली इसके चांसेस सही होने के होते हैं, दिस इज नॉट रेड फ्लैग। लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव रेड इन 2022 जब हमने पेपर सॉल्व किया था, उसमें हाई क्लाउड लो क्लाउड था, तो उसमें लो क्लाउड का फंक्शन ये दिखाया था कि जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं आर लार्जली एब्जॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। दिस इज करेक्ट। जो वार्मिंग होती है वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये पार्ट ऑफ विजिबल नहीं आएगा, इनविजिबल आएगा, ठीक है, दिस इज ऑपोजिट। तो आंसर सी इज करेक्ट। पीवाईक्यू इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, दिस इज रॉन्ग। हमने पीवाईक्यू में पढ़ा था, पीवाईक्यू में वी हैव डिस्कस्ड कि ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा रेनफॉल होता है, जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो काफी जल्दी वॉश हो जाती है, जिसके न्यूट्रिएंट्स वॉश हो जाते हैं, तो वो रिच नहीं होती, पुअर हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज फ्रॉम पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आपने पढ़ा होता तो यू कुड हैव इजीली आंसर्ड। स्टेटमेंट 2, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट cause dead organic matter in the soil to decompose easily, this is correct। रेन फॉरेस्ट में डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होता है, आंसर इज डी। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट बट ऑप्शन 2 इज करेक्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द टेम्परेचर कंट्रास्ट between the continents and the ocean is greater during summer than in the winter, this is wrong, this is opposite। temperature in winter contrast is more because land cools faster, तो उसमें कंट्रास्ट ज्यादा आ जाता है। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। आंसर इज फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि अर्लियर देन दे रखा है तो इसमें रेड फ्लैग है, मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ कि ओनली टिप्स और ट्रिक्स नहीं होगा, नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी 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 बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी में सब में ये बहुत क्लियरली डायरेक्टली वहीं से उठाया गया है। इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव, दिस इज करेक्ट। Second, in P waves, the individual particle vibrate to and fro in the direction of wave propagation, whereas in S wave, the particles vibrate up and down at right angle to the direction of wave propagation. Don't get confused कि सर इसमें whereas दे रखा है तो it is a red flag, but ये directly question NCERT से उठाया और NCERT में directly ये चीज explain की गई है clearly। तो knowledge is also important, मतलब red flag यूपीएससी वहां जा डालता है जहाँ यूपीएससी को लगता है कि स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा, वो एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है, वहां यूपीएससी रेड फ्लैग जैसे डाल देता है बेरस वगैरह लाके। बट जहां यूपीएससी को लग रहा है एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है तो वो वहां बेरस ला के स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए देता है कि ऐसे स्टूडेंट ने ट्रिक्स का गलत यूज तो नहीं कर रहे। तो दीज बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ 1 and 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to coal based thermal power plants in India, consider the following statements। First, none of them uses sea water। क्या कोल थर्मल पावर प्लांट होता है उसको कूलिंग डाउन करने के लिए जो कोस्टल एरियाज में लोकेटेड है they would use sea water ना, तो ये यूज करते हैं, दिस इज रॉन्ग, none is a red flag। Second, none of them is set up in water stress district, none, too extreme, मतलब ये वाले too extreme। Third, none of them is privately owned। इंडिया में देर आर मतलब टाटा का ये है, इतने सारे अडानी है, इतने सारे प्राइवेटली ओन्ड है, दिस इज टू रॉन्ग, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, आंसर इज डी, नन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, Wolbachia method is sometimes talked about with reference to which one of the following। ये अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये काफी टाइम से 4-5 साल से न्यूज में था। Wolbachia इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है Wolbachia मेथड में, हम फ्रूट फ्लाई से बैक्टीरिया लेते हैं एंड वी इंजेक्ट इट इन इजिप्टी मॉस्किटोज। जो मॉस्किटोज होते हैं दैट इज द मेन कॉज ऑफ चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह स्प्रेड करते हैं। तो जब हम उनके अंदर वायरस स्प्रेड करते हैं, दीज आर वायरस जो मॉस्किटोज होते हैं,
तो ये बैक्टीरिया जब हम वायरस में इन्फेक्ट कर देते हैं तो जो एजिस एडिप्टी मॉस्किटोज वगैरह हैं उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो उनके अंदर जो वायरस है उसे वो कॉम्बैट कर पाते हैं और उनका प्रोडक्शन जो मॉस्किटोज होते हैं उनका जो वो होता है रिप्रोडक्शन वो स्लो डाउन हो जाता है और वो अंदर के वायरस को भी फाइट कर पाते हैं, जिससे जो स्प्रेड होता है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है. तो दिस इज ए कंट्रोलिंग द वायरल स्पीशीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज. देन क्वेश्चन नंबर 68. Consider the following activities. ये following activities consider करके you have to answer the question. Spreading finely ground basalt rock on farmland extensively. पहले question पढ़ लेते हैं. How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? कार्बन निकालने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है. Spreading finely ground basalt rock on farmland extensively. Then this is correct. This is positive. तो ये भी positive है. डोंट गेट कंफ्यूज कि एक्सटेंसिवली दे रखा है, बट एक्सटेंसिवली पॉजिटिव कोनोटेशन में दिया गया है. अगर नेगेटिव में दिया जाता तो ये रॉन्ग होता. देन सेकंड, इंक्रीज अल्कलिनिटी ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम. लाइम ऐड करने से जो कार्बन होगा वो ज्यादा कैप्चर हो जाएगा. दिस इज करेक्ट. थर्ड, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पम्प्ड इनटू abandoned and subterranean mines in the form of carbonated water. इससे भी हम कैप्चर करके उसमें कर रहे हैं. आंसर वुड बी सी, ऑल द थ्री. आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. जैसे हमने पहले पेपर आई थिंक 2022 में डिस्कस किया फ्रैक्शनल बॉम्बार्डमेंट ऑर्बिटल की, उसके जो कीवर्ड्स हैं वो आंसर में ऑप्शन में आने चाहिए. ऐसी एरियल एयर, मेटाजेनोमिक्स डीएनए, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेटेड वन को इसमें आ रहा है. अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज. Third, using airborne devices to collect blood samples. Fourth, sending drones into inaccessible areas. ये सब अगेन रॉन्ग है. आंसर ए डायरेक्टली, जो बिल्कुल बेसिक ओवरथिंक नहीं करना, सिंपली आप काम ऐसे दोगे तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट. आंसर इज दिस ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. Microsatellite DNA is used in the case of which one of the following? DNA. जब whenever you think about DNA, you think of evolution. ठीक है, डीएनए से ही कॉपी पेस्ट होता है तो वो इवोल्यूशन होता है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. आंसर, स्टडीइंग द एवोल्यूशनरी रिलेशन, स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल, प्रमोटिंग कोनल प्रोपोगेशन, असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स. मतलब बेस्ट इज आंसर ए. आइदर स्किप इट, और अगर थोड़ा लॉजिकल कॉमन सेंस लग गया तो डीएनए से डायरेक्टली सिंपल इवोल्यूशनरी. देन क्वेश्चन नंबर 71. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया. इसमें बताना है कौन सा वाला करेक्ट होगा. ऑप्शन इज आस्किंग विच वन इज करेक्ट. ऑप्शन 1, अकॉर्डिंग टू एमएसएमई एक्ट 2006, द मीडियम एंटरप्राइज आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स मशीनरी 15 करोड़ एंड 20 करोड़. राइट इन द कमेंट सेक्शन सही वो क्या है. इन्वेस्टमेंट लिमिट. दिस इज द रेड फ्लैग. सेकंड, ऑल, ये नंबर दिया है स्पेसिफिक. सेकंड, अगर ये ओवर दिया होता मे बी तब सही हो जाता, पर ये 15 एग्जैक्ट फिगर दिया जाता है तो रेड फ्लैग हो जाता है. Second, all bank loans to the micro, small, medium enterprises qualify under priority sector. Don't get confused with all. अगर पॉजिटिव में all है तो it works, क्योंकि एमएसएमई वो होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर में. क्या होता है, इनको लेंडिंग के लिए ईज बैंकिंग प्रायोरिटी सेक्टर पे बैंकों को लिमिट फिक्स कर दी जाती है कितना आपको पर्टिकुलर सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन वगैरह में इतना यू हैव टू गिव द लोन. अगर ये लिमिट फिक्सिंग की जाएगी बैंक की तो दे कैन इग्नोर सम सेक्टर ना. तो इसलिए जो एमएसएमई को लोन दिए जाते हैं, दे आर द इंजन ऑफ इकोनॉमी, तो उनको लोन्स जितने भी बैंक लोन होते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर में दिए जाते हैं. दिस इज करेक्ट, पॉजिटिव स्टेटमेंट. ऑप्शन 2 वुड बी करेक्ट. आई होप ये पीवाईक्यू सॉल्व करने से जो चीट कोड्स वगैरह होते हैं प्रॉपर इंप्लीमेंट करना आ गया है. आई होप यू इंप्लीमेंटेड प्रीलिम्स 2025. क्वेश्चन नंबर 72. विद रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. फर्स्ट, it is possible to make payments in a digital currency without using US डॉलर और स्विफ्ट. इनको बाईपास करने के लिए ये पॉजिटिव है. मतलब यूएस अब्यूज कर अपने स्विफ्ट सिस्टम, किसी भी कंट्री के ऊपर वो लगा लेता है, सैंक्शंस लगा लेता है, फिर इंडिया को ट्रेड करने के लिए टफ हो जाता है. अगर हम डिजिटल रुपी लॉन्च करते हैं तो वी कैन बाईपास दिस स्विफ्ट सिस्टम यूएसए बेस्ड जो है. दिस इज करेक्ट, इट इज पॉसिबल. सेकेंड, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड with a condition programmed into it, such as time frame for spending it. This is correct. Can be distributed.
मतलब कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो वो करेक्ट होगा. आंसर इज बोथ 1 and 2. नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बीटा, बीटा जब पढ़ते ही बीटा गामा अल्फा, दीज आर नंबर, हमने मैथ्स में पढ़े हैं अल्फा बीटा गामा. तो दिस इज मतलब डायरेक्टली अ न्यूमेरिक वैल्यू. जैसे हमने PYQ 2020 में क्लाइमेट चेंज ट्रैकर पढ़ा था. ट्रैकर ये मींस डेटाबेस, ट्रैक करने के लिए ग्रोथ वगैरह. ऐसे ही सिमिलरली अल्फा बीटा गामा, दीज आर न्यूमेरिक वैल्यूज that measure the fluctuations of a stock to changes in overall stock market. This is correct. मतलब you should have attempted this question. इसमें मैं बता रहा हूँ, जब आप ओवरथिंक नहीं करते हो, कामली पेपर देते हो, तो इसलिए आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो और यू कैन इजीली क्लियर कट ऑफ. मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है. काफी ऐसे लोग हैं जिनकी नॉलेज इज टॉप नॉच, परफेक्ट, बट वो ऐसे क्वेश्चन को रिस्क नहीं लेते, कॉमन सेंस नहीं लगा पाते ओवर थिंकिंग की वजह से, जिनका वो रह जाता है. अगर वो थोड़ा कामली विदाउट ओवर थिंकिंग थोड़ा ईज में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, so they can easily get their name in the final list. Then question number 74. Consider the following statement. The self-help group SHG program was originally initiated by the State Bank of India. This is wrong. ये हमें पता है NABARD, ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है. NABARD ने माइक्रो उसका स्टार्ट किया था SHG का. Wrong. In a SHG, all members of a group take, all से confuse मत होना, पॉजिटिव है. All members of a group take responsibility for a loan that an individual member takes. This is correct. सब एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसलिए बैंक उन्हें लोन देती है. थर्ड, द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट. दिस इज पॉजिटिव SHG. तो बैंक सपोर्ट SHG. ओनली 2 वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75. आई होप आपको ये सॉल्व करना आ रहा होगा. फर्स्ट, इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली, मतलब जनरल चीज है, largely focus on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. This is correct. मतलब पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम में क्या है, एम्स वगैरह के नाम फेमस है, तो ये क्यूरेटिव पे फोकस करते हैं. जो इंडिया जो बेसिक प्रिवेंटिव सेंटर्स हैं जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह, तो उसमें फोकस ही नहीं है. तो पॉपुलर क्या है, एम्स में. वी फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर. तो दिस इज करेक्ट. Second, statement 2, under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states, yani because health is a state subject, health are primary responsibility for organizing healthcare services. This is correct again. तो दोनों करेक्ट हैं, बट इसमें कोई कोरिलेशन है. अगर हमने बिकॉज लगा दिया तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है ना, तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में इसमें सिर्फ स्टेट की बात की गई है. पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इंक्लूड्स बोथ सेंटर एंड स्टेट, तो देयर इज नो कोरिलेशन. दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है. तो आंसर इज बी. स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. स्टेटमेंट 2 डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, क्योंकि स्टेटमेंट 1 इज सेइंग कि इंडिया में क्यूरेटिव हेल्थ केयर पे फोकस है, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज सेइंग कि स्टेट हेल्थ गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है. तो ये कोई कोरिलेशन नहीं है. आई होप ये समझ आया होगा. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर देन क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ग्राउंड वाटर विड्रॉल एवरी ईयर. यानी ग्राउंड वाटर वर्ल्ड का जितना विड्रॉ होता है 25% इंडिया ही करता है. सेकेंड स्टेटमेंट, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ग्राउंड वाटर ईच ईयर, यानी इतना ज्यादा कर रहा है 25% से ज्यादा, टू सेटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन नीड ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिविंग इन टेरिटरी. दिस इज रॉन्ग. इसमें क्या बोल रखा है, 18%, पर दोनों में नंबर है. दूसरी चीज क्या, जो इंडिया का वाटर है वो ओनली 10% ड्रिंकिंग के लिए है, 90% इरिगेशन. आई होप समझ आ रहा होगा. 90% इज फॉर एक्सट्रैक्शन, जो होता है वो इरिगेशन के लिए होता है. एंड क्वेश्चन इज सेइंग टू सेटिस्फाई ड्रिंकिंग वाटर, तो दिस इज रॉन्ग. टू सेटिस्फाई इरिगेशन नीड्स, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. आई होप ये कॉमन सेंस वाली चीज है. आई होप आपने सबने पढ़ा होगा कि इंडिया का जो वाटर एक्सट्रैक्शन होता है वो मेनली इरिगेशन के लिए होता है. क्योंकि इंडिया में मतलब अभी भी हम ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन वाली चीज अडेप्ट नहीं कर पाए. गवर्नमेंट अभी भी कैनाल्स वगैरह इन सब में वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ग्राउंड वाटर का हो रहा है, जिसकी वजह से पंजाब वगैरह में क्राइसिस हो रहा है. ऑप्शन 1 इज करेक्ट, देन ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 77. इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, क्वेश्चन में बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट has a duty to protect states from internal disturbance. सही है, right? Which article it is given? कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? Second, the Constitution of India exempts the state from providing counsel to a person
being held for preventive detention, this is correct. Extraordinary ये law है, this is correct. एग्जाम करता है स्टेट्स को क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात है, तो बिकॉज ऑफ मतलब रेयर सर्कमस्टेंसेस की बात है, तो इसलिए एक्सेप्शन है. थर्ड, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, confession of the accused before the police cannot be as evidence. This is wrong. Cannot भी नहीं आएगा, this is a wrong statement. It should be can be. ठीक है. तो नॉर्मल लॉज में एज एविडेंस यूज नहीं कर सकते, बट ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है, तो पुलिस के सामने जो भी कन्फेशन दिया दैट कैन बी एडमिटेड. आई होप समझ आ गया होगा. ओनली टू वुड बी द आंसर. ये नॉर्मल कॉमन सेंस पे भी लगा सकते हैं. दिस इज एक्सेप्शनल लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन, पुलिस के सामने एडमिशन, इसमें बाकियों से अलग वो सिचुएशन में मानते हैं. क्वेश्चन नंबर 78. Which one of the following countries has been suffering from decades of civil strife, food shortage, and was in the news in recent past for its very severe famine? Answer is Somalia. ये PYQs में काफी बार पूछा जा चुका है. In news too. This was in news too. So this is easy. मतलब you must attempt such question. Then question number 79. Consider the following statement. In India, the Biodiversity Management Committee are key to realization of objective of Nagoya Protocol. This is correct. Nagoya Protocol. इसमें Biodiversity Management Committee दोनों ऑप्शन में आया है. मैंने क्या बताया, अगर अथॉरिटी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक ही ऑप्शन में आया है तो वो गलत हो सकता है, पर दोनों ऑप्शंस में सेम दोनों ऑप्शन में सेम अथॉरिटी सेम ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके चांसेस है करेक्ट होने के. वो रेड फ्लैग नहीं होता, मतलब उसमें 50-50 चांसेस करेक्ट हो सकता है, नहीं भी स्टेटमेंट पढ़ के पता चलेगा, बट वो रेड फ्लैग नहीं है. In India, the Biodiversity Management Committee are key to realization of objective of Nagoya Protocol. This is correct. एक और प्रोटोकॉल साइन किया है कार्टेजना, इंडिया ने. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है. सेकंड, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंक्लूडिंग द पावर टू लेवाई कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज within its jurisdiction. These two are positive general statement. Hence, both 1 and 2 are correct. Question number 80. Consider the following statement in respect of election of President of India. इसमें चारों स्टेटमेंट में कंपैरिजन है, जैसे हायर इन वैल्यू, ग्रेटर देन, हायर देन, और ये काफी ट्रिकी वोट का स्टेटमेंट है. केरला की मध्य प्रदेश, मतलब बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है. दिस इज टू फैक्चुअल, बहुत रेयर रेड फ्लैग्स हैं. यू कैन स्किप सच क्वेश्चन. आई कुड हैव स्किप्ड इट. आंसर ओनली 3 है, बट यू कैन स्किप सच क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 81. With reference to Indian history, Alexander Rhea, A.H. Longest, and Robert Sewell, James Burgess, and Walter Elliot are associated with excavation, English press, establishment of churches, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, princely state ये पूछा ही नहीं गया. Then fourth, construction of railways in India, ये भी पॉपुलर नहीं. हाँ, establishment of press हमने सुना है जेम्स सिक्की वगैरह का, और archaeological excavation अलेक्जेंडर कनिंगम वगैरह. मैंने जब ये खुद से सॉल्व किया था, आई हैड मार्क ऑप्शन ए आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करेक्ट, क्योंकि अधिकतर जो इंडिया में इनिशियल पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली का अदर प्लेसेस का जितना भी एक्सकवेशन हुआ है, मोस्टली शुरू के पीरियड में उन्होंने इनिशिएट किया था ब्रिटिशर्स ने, जैसे अलेक्जेंडर कनिंगम है, और भी काफी सारे ऐसे नेम्स हैं. तो ये मुझे इंट्यूशन बेस्ड कॉमन सेंस ला के ए या बी में ऐसा लग रहा था, आई मार्क ए करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 82. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. ये साइट्स दे रखी हैं और फेमस फॉर. बेसनगर शेवाइट केव श्राइन, सेकंड भजा बुद्धिस्ट केव श्राइन, सीतानवसल जैन केव श्राइन. इसमें ये और ये दोनों एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है. ये भी है, अगर इफ यू रिमेंबर, इफ यू नो, दिस इज नॉलेज बेस्ड. इफ यू नो अटेम्प्ट, अदरवाइज स्किप सच क्वेश्चन. आंसर इज ओनली 2. ये थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ओनली वाले. Then 83. Consider the following statements. 7th August is declared as the National Handloom Day. क्यों? It was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day. This is correct. 7 August से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि इसमें मतलब पॉजिटिव कोरिलेटेड है, इसमें बिकॉज लगा के मीनिंग बना देगा, तो इसलिए आप इसको मार्क कर सकते हैं. बिकॉज कोरिलेट. आंसर इज ए, बोथ. क्वेश्चन नंबर 84. Consider the following statement in respect of the national flag of India according to Flag Code of India 2002.
स्टेटमेंट 1 में दे रखा है वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 टू इंटू 400 मिलीमीटर mm. Statement 2, the ratio of the length to the height या width of the flag shall be 3:4. अब दोनों में नंबर दे रखे हैं, यू हैव टू डिसाइड कि दोनों सही है या एक सही है. ये हमने पढ़ा है, रेड इट कॉमन, बट दिस इज रॉन्ग. स्टैंडर्ड साइज ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. मतलब यू कैन ऑल्सो स्किप इट और अटेम्प्ट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 85. Consider the following statement in respect of the Constitution Day. First, the Constitution Day is celebrated on 26th November every year to promote constitutional values among citizens. This is correct. PM Modi ने start किया था Constitution Day का celebration. This is correct. Statement 2, on 26th November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of P.R. Ambedkar. This is wrong. 1949 में adoption हो गया था. Not the setup. Setup around 2.5 years ago हुआ था 1947 में. तो this is wrong statement. Option C. Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. ये easy question था. पर ये आप प्लीज प्रॉपरली जब आपको स्टेटमेंट पढ़े तो प्रॉपरली पढ़ना है. 1949 कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ ये ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी, दिस इज करेक्ट, बट वो 1949 में नहीं हुई थी, पहले हुई थी. दिस यू शुड नो. क्वेश्चन नंबर 86. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. दिस इज करेक्ट, जनरल. सेकंड, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड नंबर आ गया, रेड फ्लैग, largest gold reserve in the world. This is wrong. Option C, 1 is correct, second is incorrect. Question number 87. Consider the following statements. Statement 1. Recently, USA and European Union have launched the Trade and Technological Council. ठीक है, general correct. Second, the USA and EU claim that the confuse मत हो जाना कि Trade and Technological Council इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दिस इज एन इनिशिएटिव. Second, USA and EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. This is negative, red flag. Democratization होना चाहिए, कंट्रोल नहीं होना चाहिए. Option 1 is correct, second is incorrect. Then question number 88. Consider the following statement. Statement 1 क्या बोल रहा है? India accounts for 3.2 of global export of goods. ये सर्विस होना चाहिए, इतना ज्यादा इंडिया नहीं करता. दिस इज अ रेड फ्लैग. नंबर इज अ रेड फ्लैग. देन सेकंड, मैनी लोकल कंपनीज, इसमें स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया, मैनी दिया है, पॉजिटिव, जनरल. एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम. दिस इज करेक्ट, काफी कंपनीज ने लिया, एप्पल एंड ऑल. ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट. Then question number 89. Consider the following statement. The Stability and Growth Pact of the European Union is a treaty that first limits the level of budgetary deficit of the country of the European Union, makes the country of the European Union to share their infrastructure facility, then enables the countries of the European Union to share their technology. यानी ये एक टाइप का और ये एक टाइप का, या तो ओनली वन सही होगा या ओनली टू सही होगा. आंसर इज में ओनली वन. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. तो दिस इज रिस्की, यू कैन स्किप सच क्वेश्चन. थोड़ा ट्रिकी था, अगर पढ़ा है तो अटेम्प्ट इट, अदरवाइज स्किप. क्वेश्चन नंबर 90. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है. फर्स्ट, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन. ये वाला कॉम्पैक्ट, ऑल कंट्रीज. हमेशा जितने भी एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, कुछ कंट्रीज अडॉप्ट करते हैं, कुछ कंट्रीज नहीं करते. दिस इज अ रेड फ्लैग. नॉट ऑल कंट्रीज, कुछ ही कंट्रीज अडॉप्ट करती हैं, जो डिसएग्री करती हैं, दैट डजंट अडॉप्ट. सेकंड, द ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द जीसीएम आर बाइंडिंग ऑन द यूएन. दिस इज रेड फ्लैग. थर्ड, द जीसीएम एड्रेसेस द इंटरनल माइग्रेशन और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल आर इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड कमिटमेंट. ये एक्सटर्नल होगा, ये रेड फ्लैग है. सॉवरेनिटी की बात होती है.
ये कंट्री का इंडिविजुअल डिसीजन है, ओनली एक्सटर्नल वाला कंट्रोल करता है, क्योंकि एक्सटर्नल में कोऑपरेशन चाहिए, कोऑपरेशन यूएन के नेसेसरी है, इंटरनल में इसका यूएन का या उसके एग्रीमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। आंसर इज डी, नन। देन 91, with reference to the home guard, consider the following statement. First, home guards are raised under the home guard act and rules of the central government. क्या ये होम गार्ड वगैरह होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर रेस किए गए हैं? देन नेक्स्ट, टू सर्व द रोल ऑफ होम गार्ड is to serve as an auxiliary force in the police to maintain internal security. होम गार्ड्स का रोल इंटरनल सिक्योरिटी में मेंटेन करने के लिए होता है। दिस इज करेक्ट। ऑक्सिलरी फोर्स, हेल्पिंग, यानी पुलिस मेन है, पुलिस के अलावा जैसे कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, कुछ भी ऐसा रेयर इंसिडेंट हो जाता है तो उसमें बैकअप की जरूरत होती है, तो दिस इज अ बैकअप, होम गार्ड्स इन द मेंटेनेंस ऑफ पुलिस के साथ। देन टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज, द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियन हैव बीन बेस्ड इन सम स्टेट्स, दिस इज करेक्ट। अब इसमें स्टेट पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट की बात कही है तो सेंटर में स्टेट होना चाहिए, बिकॉज पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो सेंटर के अंदर है, पर जो उसकी ऑक्सिलरी फोर्सेस हैं पुलिस की, वो स्टेट के अंदर है, क्योंकि पुलिस इज द स्टेट सब्जेक्ट। दिस इज रॉन्ग, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। ये स्टेटमेंट दिए, ये स्टेटमेंट दिए, दिस इज टफ, नॉलेज बेस्ड, अगर आता है तो ये अटेम्प्ट, अदरवाइज स्किप इट। इसमें आंसर बी है, ओनली टू, ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। रीजन दे रखा है और रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज दे रखा है। नॉर्थ की वॉर बिटवीन अजरबैजान एंड अर्मीनिया, दिस इज रॉन्ग। ये किसके लिए फाइट करते हैं? नगोर्नो कराबाख, दिस इज वेरी वेरी फेमस, आई होप आपने आईआर का अपना पढ़ लिया होगा। देन खरसोन और जेप्रोसिया, ये नगोर्नो कराबाख इधर दे रखा है तो ये भी गलत होगा। नगोर्नो जेप्रोसिया, दिस इज रशिया यूक्रेन, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, आंसर इज नन, these three are correct, D would be the right answer. 94, consider the following statement. Israel has established diplomatic relation with some Arab state, this is correct. The Arab Peace Initiative mediated by Saudi Arabia was signed by Israel and Arab League, this is a red flag. It is between Israel and Saudi Arabia. One is correct, second is incorrect. 95, consider the following pair with regard to sports. मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो दिया जाता है वो स्पेक्टिकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, करेक्ट। सेकंड, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम स्पोर्ट्स मैन अवार्ड, ये नहीं है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड, दिस इज रॉन्ग। द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड इज लाइफ टाइम, देन द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर एमिनेंट कोचेस, दिस इज कोचेस इज करेक्ट। द्रोणाचार्य वाज गुरु, दिस इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। देन राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार to recognize the contribution made by sports person even after their retirement, this is wrong, corporate के लिए दिया जाता है, and all इसका promotion के लिए, this is the wrong statement. Answer would be only two, knowledge based. If you know, attempt it, otherwise skip it. Question number 96, consider the following statement in respect of the 44th chess Olympiad. First, it was the first time, इसमें फर्स्ट देर कंफ्यूजन मत होना, दैट द चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा इसलिए क्योंकि इंडिया में हुआ था। सेकंड, द ऑफिशियल मास्कॉट वाज नेम्ड थम्पी। थर्ड, द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज द वीरा मांचिक कप। द ट्रॉफी इन द विनिंग टीम इन द विमेन सेक्शन इज द हैमिल्टन रसल कप। ये हम वैसे रॉन्ग कर सकते थे अगर ये फर्स्ट टाइम हुआ है, पर इसमें यहाँ यूपीएससी ने जो ट्रिक करी है वो पर्टिकुलर नंबर वाली नहीं करी। इट इज नॉट द नंबर वाली ट्रिक, इसमें यूपीएससी ने ये चेंज कर दिया है, फ्लिप कर दिया, तो ये वाले स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। आंसर बी, ओनली टू। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यूपीएससी ने यहाँ जो ट्रिक अप्लाई करी है, रेड फ्लैग करा है, वो नंबर वाला नहीं करा, यहाँ फ्लिप करने वाला करा है, जो अधिकतर यूपीएससी फ्लिप वाला करता है। आपने जैसे ये दो सेम सेम कर लो, अगर ये एक ही दिया होता, ओनली इफ 1 to 3 स्टेटमेंट वर गिवन, फोर्थ वाज नॉट गिवन, अगर सिर्फ ये 3 दिए जाते तो इसमें नंबर वाली ट्रिक वर्क करती, पर इसमें फोर्थ भी दे दिया गया, यानी कि यूपीएससी ने इधर फ्लिप करा है। सिमिलर स्टेटमेंट है पर कॉन्ट्रडिक्टरी है, दीज टू आर कॉन्ट्रडिक्टरी, तो आंसर इज ओनली टू।
ऐसे हम पीवाईक्यू एनालाइज करके यूपीएससी के माइंड को समझते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 97, डोनबास is not in Syria, this is in Ukraine, very much in news. Kachin, this is in Myanmar, very much in news. Tigray is in Ethiopia, क्योंकि ये तीनों फाइटिंग चल रही है. प्लीज आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में कहाँ फाइटिंग हो रही है वो पढ़ लीजिएगा. एक मिनट दे रहा हूँ. M23 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. M23 ये किस चीज का नाम है और ये किस कंट्री में ये ग्रुप है M23 वाला. दिस इज नन. देन इन रिसेंट ईयर्स Chad, Guinea, Mali and Sudan caught the international attention for which one of the following reason. अफ्रीका की कंट्रीज मेनली दो रीजन के लिए होती हैं, या तो फेमिन एंड हंगर या फिर पू. तो इसमें रिच डिपॉजिट, चाइनीज मिलिट्री, एक्सपेंशन ऑफ सारा या सक्सेसफुल पू, मोस्टली यही रीजन होता है. देन क्वेश्चन नंबर 99, कंसीडर द फॉलोइंग heavy industries. Heavy industries है. Green hydrogen is expected to play role in decarbonization. How many of the above industries? Decarbonization किसमें चाहिए? सब में. फर्टिलाइजर, ऑयल, एनीथिंग. पॉजिटिव, सिमिलर, तीनों सिमिलर है. तीनों में decarbonization is needed. Answer is C. Question number 100. Consider the following statement about G20. अगेन क्वेश्चन में G20 दिया है, ऑप्शन में भी दोनों में G20 दिया है, तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन वाला रेड फ्लैग वोंट वर्क. G20 group was originally established as a platform for the finance minister and central bank governor to discuss international economic and financial issues. This is general and positive statement. Correct. Second, digital public infrastructure is one of India's G20 priority. This is again positive and general. This is correct. Answer is both 1 and 2. आई होप ये 100 क्वेश्चंस हो गए, आपको ये समझ आए होंगे. प्लीज इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा से देखिएगा. अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आई विल अटैच माय टेलीग्राम ग्रुप जिसमें ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा और वीडियो अपलोड कर दूंगा. प्लस आई विल ऑल्सो शेयर माय मेल आईडी जो मैं ग्रुप इसमें डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा. बाकी आप कुछ भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू कम्युनिकेट विद मी थ्रू मेल. बाकी प्लीज सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द आइकन बटन, जिससे आपको जब भी मैं अपलोड वीडियो करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा. अभी हम 2024 का भी पेपर सॉल्व करेंगे, दैट ऑल्सो आई विल अपलोड. प्लीज तो इसलिए सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा. यू विल गेट द नोटिफिकेशन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय. ऑल द बेस्ट.